Hi, good evening to all the viewers of our esteemed Cerebellum Academy channel. I today have the privilege of having with me one of the stalwarts of Cerebellum family faculty, Dr. Amrit Nasta sir, who happens to be the surgeon, the man with the scalpel. And as a lot of you may be knowing that he is a practicing bariatric surgeon in Mumbai. And I am very glad to share with me, another member of the Cerebellum family who happens to be one of our recent success stories, Dr. Ayush Bhatti from Delhi joining us. So first of all, from all the people in the Cerebellum family, a very warm welcome to you and congratulations to you, Dr. Ayush, for your stupendous result in the recently declared FMG exam. Thank you very much, sir. Thank you very much, Parsh sir and Amrit sir. And also, thank you very much for the way you teached us and guided me in my results, which shown in my marks. Okay, that's really good. Dr. Ayush, will be very kind of you for all our viewers across the globe if we can just have a brief introduction about yourself. Um, I am Dr. Ayush Bhatti. I did my MBBS from AMS School of Medicine, Philippines. This was my first attempt in which I scored 174, and that's all. I used Cerebellum and Mission 200, which was the recent program Cerebellum created for the guidance of students. So I used that, and I did all the live lectures. I did attempt all the GTs. It is very important to do all that. So first thing first, as Dr. Ayush rightly made a mention of the fact that all the people who are in their final years or who are likely to be appearing in the exam for the first time, no matter what the level of the exam is very much crackable, as is evident from another success story that Dr. Ayush is sharing with us, that he in this particular, a very atypical kind of an exam, was able to manage a score of 174, which is a very, very awesome score. Thank you, sir. Ayush, will just be very happy if you can share with us that how exactly did you start preparing for the exam? I mean, was it in your final year? Was it prior to that you started preparing specifically for the screening exam? Sir, actually होता क्या है in our college, the last year is clerkship. So before the last year, the last semester, it is of neurology and OB-GYN. So सर जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं ना, जो कॉलेज एग्जाम्स में आते थे, वो काफ़ी टफ होते थे। तो उनके लिए ही मैंने तब से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मतलब मेन वो क्लिनिकल सब्जेक्ट से न्यूरोलॉजी में हमारा मेडिसिन में कवर हो जाता है और OB-GYN ऑब्वियसली एक बड़ा सब्जेक्ट है। तो मैंने तब से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद मैं धीरे-धीरे पढ़ रहा था। ऐसा नहीं कि मैंने मतलब एकदम एग्ज़ाम फ़ोकस्ड प्रिपरेशन नहीं करी थी, बट मैंने तब से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। फिर अभी लास्ट अटेम्प्ट में मेरे कुछ फ्रेंड्स और मेरे सीनियर्स ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। अ, डॉक्टर रवि थे, डॉक्टर हितेश किन्हा थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा 230, 200 स्कोर किया था, तो उन्हें देख के मुझे और काफ़ी मोटिवेशन आई कि मुझे भी पहली बात तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। सेकंड के मुझे भी मार्क्स थोड़े अच्छे चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने अब लास्ट जब मेरा ग्रेजुएट हुआ मैं मार्च में, उसके बाद से सर फिर मैंने एग्ज़ाम फ़ोकस बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी अपना। सो डॉक्टर आयुष, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने देखा इस बार की रिज़ल्ट तो इतनी अच्छी नहीं थी एफएमजी की। जी हाउ सर। डू यू फील बीइंग इन दैट क्रीम ऑफ द क्राउड कि आप क्लियर कर दिए एग्ज़ाम? कैसा सर महसूस होता है आपको? आपके काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह शायद ना क्लियर हुए हों। यस सर, यस सर। सर मेन थिंग मेरे को यही लगी कि मतलब एग्ज़ाम ऑब्वियसली इट वाज़ टफ, बट द थिंग इज़ कि अगर आप पढ़ते रहेंगे ना, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अनक्रैकेबल था। अगर आप पढ़ते रहेंगे, थोड़ा-थोड़ा भी पढ़ते रहेंगे, बस आपको अपनी लाइन से नहीं हटना है। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो ये ऑब्वियसली हो जाएगा। तो मैं पहले स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए जो आने वाले हैं, जो अपीयर करने वाले हैं, उनके लिए एक सवाल पूछूँगा। जी सर। आपके स्टडिंग की प्रायोरिटी में आप क्या-क्या रखते हो? मतलब आपने वीडियोज़ ज़्यादा देखे, लाइव क्लास ज़्यादा अटेंड करे, क्यू बैंक्स, टेक्स्ट बुक्स, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैं क्या-क्या पढूँ? तो आपने क्या-क्या प्रायोरिटाइज़ करी आपके प्रिपरेशन में? सर जैसे कि मैंने पढ़ना थोड़ा पहले से स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने अपने मेजर सब्जेक्ट्स बनाए थे। मेजर सब्जेक्ट्स में मेडिसिन, सर्जरी, ओबी-गायनी, ईएनटी, ऑप्था, पीएसएम इन 6 सब्जेक्ट्स को सर मैंने मेन वीडियोज़ से करा और फिर इनके मेन नोट्स पढ़े सबके। उसके ठीक बाद है। फिर सर जब तक ये कंप्लीट हुआ फिर सेरिबेलम 200 वाला अब मिशन 200 स्टार्ट हो गया था। फिर मेरे को उससे भी काफ़ी हेल्प मिली। तो फिर ये जो सेरिबेलम मिशन 200 भी हमारा एग्ज़ाम से लगभग 2-3 वीक्स प्रायर हो गया था खत्म। उसके हुँ, बाद सर मैंने लगभग 15 जीटीज़ दिए होंगे मतलब पूरी प्रोसेस में 4 महीने के टाइम में। और
इसके अलावा मैंने मतलब टाइम ऐसे करा था कि मैं इससे पहले मैं सिर्फ वीडियोस और क्या कहते हैं आपके नोट्स पढ़ रहा था मेन, और जो लास्ट मेरे पास टाइम बचा था उसमें मैंने पीवाईक्यूज करे और क्वेश्चन बैंक सॉल्व करे, जीटीज दिए, और मैंने रैपिड रिवीजन की वीडियोस भी देखी सर। तो मतलब आपने एक काइंड ऑफ ऑल अराउंड प्रेपरेशन करी, ना कि सिर्फ क्यू बैंक करना या सिर्फ वीडियो देखना। तो आपका मेन संदेश ये है कि सारी चीजें इन ड्यू टाइम करनी होगी और ग्रेजुअली करती रहनी पड़ेगी, तभी कुछ बात बनेगी, शॉर्टकट से नहीं होगा। मेन मैसेज सर मुझे तो यही मिल रहा है। इस बार के रिजल्ट ने ये शो भी किया है, हम्म। क्योंकि जो खाली पीवाईक्यूज पे डिपेंड होके गए थे, मैंने भी ये गलती करी, मैं आगे नीट पीजी में ये नहीं करना चाहूंगा कि मैं भी काफी हद तक पीवाईक्यू पे डिपेंड था, इसलिए मुझे लगता है जो मेरा स्कोर थोड़ा कम रहा है जो मैंने एम किया था, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ। हाँ जी। आई थिंक सर वो लर्निंग हमारी कॉमन रही है, जितने भी स्टूडेंट से हमने बात करी, कि नो डाउट अबाउट द फैक्ट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, बट आई थिंक उससे थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है प्रीवियस ईयर टॉपिक्स। तो अभी का जो ट्रेंड है ना, वो पीवाई क्यू से शिफ्ट होके पीवाई टी हो गया है। यस। और जैसा कि डॉक्टर आयुष ने उस चीज को ना मतलब रीट्रेट किया है, जितने भी स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है, चाहे वो इन पर्सन बात हुई है चाहे अदरवाइज वाया इंटरव्यूज हुई है, एक बड़ी अच्छी चीज मुझे लगी जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि उनको अट्रैक्टिव फीचर लगा कि देखो सर, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो आई थिंक अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर ऑफरिंग। यस। ये जो सेरिबेलम का यूनिक फीचर है ना कि एफएमजी मिशन 200, जहाँ पे स्टूडेंट्स हैव एन आइडिया दैट एवरी इवनिंग दे हैव टू हैव अ सेशन, एंड दिस सेशन इज नॉट गोइंग टू बी एन अनलिमिटेड सेशन, वो एक 5 आवर सेशन है। तो उसमें क्या है कि दैट इनकलकेट्स अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन इन देम, एंड दैट तो ऑल्सो इज हेल्पिंग देम स्टिक अराउंड विद दैट शेड्यूल। और बाद में आधा दिन जो बचा हुआ है, जैसे मेरी अभी थोड़ी सी देर पहले एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, डॉक्टर बुशरा से, तो वो बिल्कुल डॉक्टर आयुष वाली बात ही कर रही थी कि सर एग्जाम है, उसको हमें ना थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी है। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि इनिशियली स्टार्ट करते हैं मेन वीडियो से, फिर हमारा थोड़ा मन करता है कि वीडियोस ना देखो, नोट्स पढ़ लो, मेन नोट्स। फिर मेन नोट से क्या होता है कि अमृतसर क्या मैं वो क्विक रिवीजन कर लूं, फिर क्विक रिवीजन से मैं और छोटा कुछ कर लूं, फिर छोटी कॉपी कर लूं, फिर लास्ट में 5 पेज कर लूं। मतलब आप मजाक थोड़ी ना कर रहे हो यार, यू आर लाइकली टू डील विद ह्यूमन लाइफ। यस। तो आप उस एग्जाम को जितना सीरियसली थोड़ा सा लोगे, उतना ही एग्जाम आपको सीरियसली लेगा। सर एविडेंट हो जाता है। मतलब अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन उन्होंने ट्विस्ट करके दे दिया, वो वन लाइनर था, जैसे मैं पर्सनली जानता हूँ बहुत सारे फैकल्टीज हैं वो करते थे ऑनलाइन ऑफलाइन जो है वो लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से कि हाँ जी मतलब एग्जांपल कोई भी कि डर्मेटाइटिस herpetiformis कौन सी बीमारी के अंदर है, वो सब सीलेक्स फ्लू के अंदर है। बट अभी डर्मेटाइटिस herpetiformis के क्या मैनिफेस्टेशंस होंगे या कुछ और मैनिफेस्टेशंस होते हैं सीलियक में, वो बताया ही नहीं। जी। तो क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा भी घुमाया तो वो सब फंस गए बच्चे। तो वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है उन लोगों के लिए, बट द गुड टेक होम मैसेज इज कि इफ यू आर हैविंग सफिशिएंट टाइम विद यू, प्लीज prepare very thoroughly with respect to all the previous year topics, and regularly practice your MCQs. As Dr. Ayush verified the fact that you have to keep on assessing yourself and reassessing yourself by giving grand tests, and subsequently then the programs like mission 200 plus and the other things are likely to be useful in totality. तो डॉक्टर ऑब्वियसली। आयुष, मैं एक छोटी चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि कुछ साल पहले तक मेंटालिटी ऐसी थी कि फैक्ट फैक्ट फैक्ट, मेमोरी मेमोरी मेमोरी। अब आपने एग्जाम दे दी, फर्स्ट हैंड क्लियर भी कर लिए, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को कितना आप इम्पोर्टेंस देंगे आज के जमाने में? सर 100% इम्पोर्टेंट है सर। तो पहली बात तो जो आप क्वेश्चन इस बार जो मैंने फील करा कि वो क्वेश्चंस ना सर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, काफी सब्जेक्ट के जैसे एनएट कर लीजिए या फिजियो, जो ऐसे सब्जेक्ट थे इनके डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, इंटीग्रेटेड थे। और अगर आप कॉन्सेप्ट लर्निंग नहीं करेंगे तो इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस को करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वन लाइनर्स तो फिर भी आपके एक बार को डायरेक्ट फैक्ट्स बेसिस पे हो जाते हैं, पर जो केसेस आते हैं उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और उनका वेटेज काफी ज्यादा था इस एग्जाम में। यस सर, ऑब्वियसली सर, सेकंड पार्ट इसीलिए अच्छा गया बच्चों का क्योंकि उसमें केसेस ज्यादा थे, और जितने ज्यादा केसेस थे, मेरे लिए तो स्पेशली सर केसेस ज्यादा थे, मैं केसेस ज्यादा सॉल्व कर पाया क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट मेरे थोड़े बहुत क्लियर थे। तो वही डॉक्टर आयुष की बातों सुनकर और इतने एग्जाम्स आजकल जो आ रहे हैं वो देखकर मेन तो यही लग रहा है कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, इंटीग्रेटेड लर्निंग, क्लिनिकल लर्निंग, हर सब्जेक्ट में वो 2-3 स्पेशलिटीज के टॉपिक्स कवर करते हैं। लाइक सर्जरी विद पैथो विद अनैट करके क्वेश्चन डालेंगे। सो डेफिनेटली सिर्फ फैक्चुअल चीजें जानकर या चीजें रट कर करना मुश्किल हो जाएगा। और सर आपके कुछ राय इस पर?
इसमें मैं चाहता हूँ डॉक्टर आयुष, अगर आप जैसे जो स्टूडेंट्स अब अपीयर करेंगे सब्सिक्वेंट एग्जाम्स के अंदर, तो जी उनके सर। साथ में आप कोई ऐसी बातें बोलोगे कि मतलब मोटी मोटी देखो ये 2 या 3 बातों का जरूर ध्यान रखना, ये मैंडेटरी है, मतलब ये तो करना ही है अपने को। और 1-2 बातें ऐसी जो आपको ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल मत करना, गलती से भी ये गलती मत करना। ये मेरी एज अ सीनियर, एज अ ब्रदर, एज अ पर्सन हु हैज क्लियर्ड द एग्जाम आपको एडवाइस है। तो जो डूज एंड डोंट्स वाली मतलब चीज है कि मोटी-मोटी क्या चीज़ करनी चाहिए स्टूडेंट को और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? किस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है? सर पहली बात तो ये कि डेली पढ़ना है, किसी दिन ज़्यादा पढ़ोगे, कम पढ़ोगे वो डेली चलेगा, बट ऐसा नहीं है आपको किसी दिन पढ़ाई छोड़ देनी है। और सेकंड थिंग सर जो मैं कहता हूँ कि अपना एम हाई रखना है। मतलब अगर आप मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे जिन्होंने इस बार एम 150 ही रखा था। तो मतलब अगर आप एम 150 रखते हो तो आप उससे थोड़ा बहुत शॉर्ट रह जाते हो। तो अगर एम हाई रखोगे तो उससे क्या, अगर आप शॉर्ट भी रहोगे तो आप सेफ उसमें रहेंगे। और सेकंड थिंग मैं जो कहूँगा ना करें, तो वो यही है कि पढ़ाई छोड़े ना, बेशक कुछ भी हो, और ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए जीटी के स्कोर देख के। मेरे साथ ये हुआ है सर, मैं थोड़ा जीटी में अच्छा स्कोर कर रहा था, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, तो इस वजह से मेबी मेरा स्कोर थोड़ा ड्रॉप हुआ। नहीं, नहीं, पर आपका स्कोर इतना भी कम नहीं है, मतलब वो एक इंग्लिश का फ्रेज़ है ना, इफ यू एम फॉर द स्टार्स यू विल एट लीस्ट गेट टू द मून। यस सर, और अब तो हम चंद्रयान 3 की मदद से पहुँच भी गए हैं हकीकत में। और बिल्कुल सर। आपने भी पहुँचा ही दिया सेरिबेलम को वहाँ तक, तो मतलब वी पर्सनली आर वेरी, वेरी हैप्पी दैट समबडी इन स्पाइट ऑफ एन एटिपिकल पेपर हैज़ मैनेज्ड टू स्कोर दैट वेल। And it makes us feel very proud, Dr. Ayush, when we hear stories like yours. थैंक यू क्योंकि सर। रिजल्ट देख के हम तो काफी we were obviously very affected, but when we hear stories like yours, we feel even more motivated कि हम और भी पढ़ाएं, और भी स्टूडेंट्स को और भी हेल्प करें। और वो हमेशा एक टू वे प्रोसेस होती है ना, मतलब देखो समबडी लाइक अमृतसर है, मतलब तो ही इज लिविंग हिज प्लेस एट 7:30 इन द मॉर्निंग, है ना? 8:30 पे तो सर वॉश होके ओटी के अंदर होते हैं। उसके बाद फिर वो पेशेंट को ऑपरेट करने के बाद वो इमीडिएटली, है ना, पोस्ट ऑप आईसीयू के अंदर पेशेंट है। और फिर सर हमारे ऐसा कोई आदमी उनको परेशान करने के लिए बोलता है कि सर सेशन हो रहा है, तो ही इज मेंटली वरिड अबाउट दैट पेशेंट ऑल्सो। एट द सेम टाइम अ टीचर लाइक हिम इज ऑल्सो, मतलब एज अ टीचर वो सोच रहे हैं कि यार बच्चे को 10:30 की रहते और पढ़ा दो थोड़ा सा। इस बट चीज़ से सर हमें काफ़ी मोटिवेशन मिली, क्योंकि अमृत सर ने अपनी शायद सेकंड लेक्चर में ये बताया भी था कि सर आई थिंक 8 या 6 आवर्स के एक ओटी से आए थे, और फिर आके सर ने 5 आवर्स का लेक्चर लिया था। तो इस मेरी चीज़ से आज की हमें स्टोरी भी वैसी है। यस सर। तो इस चीज़ से हमें भी एक मोटिवेशन मिला था कि जब सर 8 आवर्स की ओटी के बाद यहाँ 5 आवर्स का लेक्चर ले रहे हैं, तो हम तो सिर्फ बैठ के पढ़ ही रहे थे। हमें तो मतलब हम इसमें कहाँ फिर अपनी कमी नहीं कर सकते ना। एग्जैक्टली तो मेरे को लगता है कि पीपल लाइक अमृत सर हैं या जानवी मैम है या दिलीप सर हैं या आनंद सर हैं, वो मतलब मुझे पर्सनली इसे लगता है कि स्टूडेंट्स के ना बहुत अच्छे रोल मॉडल्स हैं। बिकॉज देखो फ्यू इयर्स डाउन द लाइन वी एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू नॉट ओनली क्रैक दिस एग्जाम, दिस इज नॉट गोइंग टू बी योर लास्ट सक्सेस स्टोरी। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा ये इंटरमीडिएट सक्सेस स्टोरी है। जी इसके बाद सर। तो वी एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू गो इन फॉर प्लैब, यूएसएमएलई और इंडियन पीजी, राइट? और यस सर। सब्सिक्वेंटली विल कम इनटू प्रैक्टिस एज वेल। तो क्या होता है ना कि एट द बैक ऑफ आवर माइंड इट इज अ सबकॉन्शियस फिनोमिना कि यार मेरे वो जो टीचर थे ना वो उस टाइम पे इतनी मेहनत करते थे। तो डेफिनेटली मतलब हम तो लाइटली कहते हैं कि अमृतसर वगैरह तो सब हमारे सीनियर हैं, हम तो 16 साल वाले ही हैं। बट नहीं, ये लोग सीनियर होके भी ना इतना टाइम निकाल लेते हैं, तो वी आर वेरी अमेज्ड बाय कि। और फिर क्या है कि जैसे अभी हमारा रिसेंटली एक फंक्शन हुआ, तो उसमें फ्लाई डाउन भी कर गए। तो मतलब हम लोग यही समझ रहे हैं कि हाउ आर दे एबल टू जगल सो मेनी बॉल्स टुगेदर, नो? मतलब ही इज अ सर्जन, ही इज अ टीचर, ही इज अ हस्बैंड एज वेल, है ना, ही इज अ सन एज वेल, सो ही इज अ फैमिली मैन एंड देन ही इज एबल टू डू दीज थिंग्स एज वेल। तो वो एक सबकॉन्शियस लेवल पे लगता है कि यार अमृतसर कर सकते हैं तो भाई हम मतलब क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों तो नहीं कर सकते? सेरेबेलम भी फैमिली है सर। नहीं, नहीं, डेफिनेटली सर। और ये तो हमारी फैमिली जो है वो एवरी डे इट इज इंक्रीजिंग बिकॉज वी आर गेटिंग नाउ पीपल विद मोर एनर्जी एंड मोर यूथ लाइक आयुष ऑल्सो हु आर यस। गिविंग अस अ बूस्ट। आपसे जितने लोगों से मैंने बात करी है ना, चाहे वो अलग अलग दिन पे अभी भी चल रहा है, तो मतलब एवरीबडी इज हैविंग अ यूनिफॉर्म ओपिनियन दैट जो मिशन वाला प्रोग्राम था, स्पेशली लाइव सेशंस वर वेरी हेल्पफुल। तो आप सोच नहीं सकते कि व्हेन वी शेयर दिस फीडबैक विद पीपल बैक, है ना, राइट फ्रॉम somebody who's coordinating our classes to somebody as a faculty या जो सपोर्ट स्टाफ है, वो इतना एनर्जाइज फील कर रहा है ना, मतलब आज का स्टाफ आप देखोगे पूरे जोश में है। या फॉर श्योर सर। या एक चीज़ सर मेरे को और बतानी थी, मतलब हाँ जी। क्लासेस में ही आप फर्स्ट सर की क्लास में क्या हुआ था सर, मैं ना पहले आंसर नहीं कर रहा था। जैसे आप बीच-बीच में आप क्वेश्चंस पूछते थे, तो मैं पहले आंसर नहीं कर रहा था, मतलब चैट बॉक्स में नहीं लिखता था, खुद यहाँ पे बोलता था। तो सर मेरी मदर ने कहा कि तू आंसर क्यों नहीं करता? फिर आपने भी वहाँ से बोला कि आप अभी अगर आंसर करोगे तो उतने ही कम आपके चांसेस होंगे कि आप एग्ज़ाम में
गलत आंसर करोगे, और यहाँ पे आप जितने गलत आंसर कर सको करो। तो सर एक मेरी ये भी राय रहेगी स्टूडेंट्स के लिए कि अभी क्लासेस में अगर टीचर्स पूछ रहे हैं तो ट्राई एज मच एज यू कैन टू आंसर इन द चैट बॉक्स। नहीं और बिल्कुल यार, वो ये तो तो सर सिर्फ लाइव क्लास में ही हो सकता है। यस सर, वो लाइव क्लास में ही हो सकता है, इसीलिए मिशन 200 भी काफी हो रहा इम्पोर्टेंट रहा। तो इसीलिए तो सर हमने वो पैकेज जो पीपल लाइक कपूर सर या पीपल लाइक गोविंद सर डिजाइंड, वो इसीलिए किया ना कि भाई प्री रिकॉर्डेड तो है ही, वो तो अवेलेबिलिटी आपके पास है ही, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप उसको देख लो। बट द एडवांटेज इज कि एक लाइव चल रहा है तो उसमें अब आपका ना उसी टाइम असेसमेंट हो रहा है। और मैं तो स्टूडेंट्स को ऐसा बोलूंगा, जैसे अभी मेरे से बहुत सारे लोगों ने शेयर किया जिनका स्कोर 200+ भी था, कि सर हम तो ना अपने आप को इवेल्युएट करते थे, बिकॉज बहुत सारी चीजें क्या है कि आपने नोट्स में लिखी हुई है। अगर मैं सेम चीज पूछूंगा, मतलब अमृतसर अब आपसे पूछेंगे कि हाँ सेंट्स ट्रायड क्या है, तो आप हो सकता है नोट्स में देख के बता दो कॉन्फिडेंटली, हाँ सर देखो गॉलस्टोन होता है, हाइटल हर्निया होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। बट वो पूछेंगे लॉजिक क्या है उसका, वहां पे फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार इसमें क्या एडिशनल फाइंडिंग होगी। बट सर जब कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाते हैं कि यार वो ओबेसिटी के कारण है, हाई बीएमआई के कारण है, तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन भी वो उसी कंसेप्ट से बेस्ड हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, ट्रायड भी अपने को याद हो गया जो क्लासिकल क्वेश्चन था, और हम क्लिनिकल अपना कॉन्सेप्ट बेटर कर लेते हैं, तो इंटीग्रेट क्वेश्चन जो हम क्रैक करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जी सर। And the icing on the cake is कि a lot of you will be appearing in the PG exam subsequently, यस right? सर, You will श्योर। realize कि these concepts are going to be extremely handy there also. मतलब आपको मैं ये बोलूंगा कि अगर वो 100 मीटर डैश है तो आप ऑलरेडी 80 मीटर्स पे हो। तो जो आदमी शुरू कर रहा है 0 मीटर से और आप 80 मीटर्स पे, आप सोचो कितना बड़ा एडवांटेज आपके साथ, सिर्फ 20 मीटर की आपको एफर्ट और करनी है जी ना? सर। आयुष, on a personal note, what is the specialty that you personally prefer to do your PG in? सर ऑर्थोपेडिक्स। अच्छा, ग्रेट। आजकल तो सर सबको इंटरनल मेडिसिन ही करनी है। नहीं बट आयुष सर दूसरे वाला है, वो हमारा जॉइंट रिप्लेसमेंट वाला भाई है। अपूर्व सर का फैन। अपूर सर का फैन है सर वो, अपूर सर तो फिर अपूर सर ही है, पता ही है आपको। अच्छा आइए एक बात मुझे बताओ आयुष की, एज अ स्टूडेंट, मतलब मैं आपको एज अ सीनियर देखता हूँ, मतलब जी सर। हमारे कॉलेज में तो हम सर मैम भी बोल सकते थे, भैया दीदी भी बोलते थे, जो भी कन्वीनियंट लैंग्वेज है। मैं आपको बोलता हूँ कि सर मेरे को, आयुष सर प्लीज ऐसा कर दो कि मेरे को पूरे 19 सब्जेक्ट्स ना पढ़ने पड़े। मतलब मैं 8 सब्जेक्ट पढ़ के, 10 सब्जेक्ट पढ़ के, 12 सब्जेक्ट पढ़ के क्या मेरा एग्जाम निकल जाएगा? या निकलवा दो सर, कुछ गाइड कर दो, ऐसा है कुछ कंसेप्ट? सर मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, मतलब क्योंकि मैं जो सोच के चलता हूँ, मैं यही सोच के चलता हूँ कि मुझे पार्शियल काम नहीं करना, मेरे को काम करना है तो मेरे को टोटल ही करना है। बट अगर फिर भी किसी ने सोचा होगा, जैसे मेरे सीनियर्स ने भी काफी ने मुझे बताया कि कम टाइम है, तो वही 6 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है। ओबी गायनी, सर्जरी, पीएसएम, ईएनटी, ऑप्था, मेडिसिन में आपका मेडिसिन के साथ साथ फार्मा और पैथो, माइक्रो। बट एज अ सीनियर आप बोलोगे कि मतलब अगर टाइम की अवेलेबिलिटी है तो इज इट नॉट अ गुड थिंग कि पूरे के पूरे 19 सब्जेक्ट्स कवर करें? इनफैक्ट एज वी कीप ऑन सेइंग कि मतलब ब्लैंक तो छोड़ के मत जाना। सर ऑब्वियसली मैं मेरे से अभी तक जिन भी जूनियर्स ने किसी ने पूछा है, तो मैंने उनको सबको यही कहा है कि आप एक बार जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं इनको तो आप पढ़ो ही पढ़ो, बट एक बार आप गो थ्रू जरूर करो शॉर्ट सब्जेक्ट्स, और बाकी सब्जेक्ट्स का भी जरूर गो थ्रू करो, ताकि सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपके पास कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो रहे। और मेरे को लगता है उससे एक ना बहुत बड़ा फोबिया या फोमो जो है ना वो दूर हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए कोई पूरी की पूरी ऑप्थैल छोड़ गया, अब वो ऑप्थैल का क्वेश्चन जैसे ही अपीयर करेगा ना वो बोलेगा ये तो बॉस मेरे को करना ही नहीं है। एक सर प्रणीत सर ने एग्जाम्पल भी दिया था अपनी क्लास में ईएनटी में, जब लास्ट में, तो प्रणीत सर ने कहा था कि जो कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं जो पूरे 19 सब्जेक्ट्स कर रहे हैं। तो अगर आपने ईएनटी छोड़ दिया, ईएनटी 15 कुछ मार्क्स का होगा, तो अगर आपने ईएनटी छोड़ दिया तो आपके 15 मार्क्स गए, और आपने अगर मेडिसिन में ही किसी ने ज्यादा मेहनत करी, किसी ने थोड़ी कम करी, तो सर ने कहा कि वहां आपका 5 to 10 मार्क्स का गैप रहेगा, पर आपने पूरा अगर ईएनटी और ऑप्था छोड़ दिया तो आपका पूरा 30 मार्क्स जाएंगे। तो अगर इस हिसाब से भी सोचा जाए तो फिर इधर हमें ज्यादा बेनिफिशियल है कि हम सबको कवर करें, रेदर देन किसी एक को बहुत अच्छा करने से। Exactly. So I think this is a very good take home message that instead of focusing passionately about one particular subject, right, it is always good कि we have a holistic view and cover all the 19 subjects as much as possible. Of course मेरी एफिनिटी हो सकती है कि मेरे को पीएसएम पसंद है क्योंकि वेक सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, या मेरा साइकेट्री के ऊपर दिल आ गया क्योंकि प्रवीण त्रिपाठी सर के एग्जाम्पल हैं सोलमन बॉय वाले। तो ठीक है ना, तो वो एक हो सकती है चीज, बट आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड टेक होम मैसेज। थैंक यू। तो मतलब डॉक्टर आयुष ने हमें कुछ सीक्रेट मंत्रा दे दिए हैं, सिंपल मेन तो कंसिस्टेंसी इज द की, रोज पढ़ते रहो तो ही कुछ बात बनेगी। होलिस्टिकली पढ़ो, सारी चीजें करो, जीटीज भी दो।
तो ये and aim high, don't aim for a passing rank or a passing right. score, aim for a higher score ताकि आप pass तो definitely हो जाओ. So I think it is a privilege for me to be sitting up with two gentlemen, and now I can say with proud कि two gentlemen with scalpels. So one who is already a very big name in surgery, and the other one who is going to be a very big name in orthopedic surgery. With all your help, sir. For sure. We are always going to be there for you, Ayush. So on behalf of Cerebellum family, we extend very warm congratulations to you once again. Thank you very And much. additionally, I mean, never ever forget their role, but we would like you to convey our deepest regards to your family members, especially your parents, Thank you. because I think prior to us, they are the ones who have done all the sacrifices and have done all the good things. It's more of their hard work, sir. It's more of their hard work rather than mine. एब्सोल्युटली तो मुझे लगता है कि वो हम ऐसे बोलते हैं कि हमारे घर में ना कि मतलब जो पहला लड्डू है एक्चुअली वो तो माँ बाप का ही है. जी सर. ठीक है, दूसरा आपका अपना है क्योंकि आपने एफर्ट करी है, बट मैं ये भी बोलूंगा साथ में कि तीसरा लड्डू मेरा और अमृतसर का है. नहीं सर, सेकंड है टीचर्स का, थर्ड मेरा. नहीं तो थर्ड हमारा है. और in fact it will be a pleasure for us to catch up with you in person as well any fine day. Yes sir, sure. And I am very pleased to share with all the people who are watching this that Dr. Ayush has already chosen Cerebellum as the preferred study partner for his subsequent preparation as well. And we are extremely thankful to him for placing that faith in us. And we hope, as I keep on saying that for a lot of people, that very short, me and Amrit sir will be coming back to take his interview again. But that sure. will be, cracking the INI CET or the NEET PG exam in a fantastic manner. Yes sir. Thank you, sir. Thank you so much, Ayush. Thank you so much, Amrit sir, for joining in, Thank even you. after Thank those you. extensive hours of work. As always, a pleasure to see your smiling face. It's our pleasure, sir, to be here. And all the best, Dr. Ayush. Keep Thank killing you. it. Best wishes from all of us. Thank you, sir. Thank you so much, Ayush.